Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session we will be talking about the next topic of the unit of human reproductive system, that is menstrual cycle. Okay. So I think I have already given you an overview or a basic idea about what menstrual cycle is when I was talking about the different other topics like oogenesis in the previous sessions of this unit. Okay, so here we will be talking about details of menstrual cycle. Okay, so exactly this is how it looks like. So cycle means obviously it will be in the form of a cycle, means circle, isn't it? And what is the speciality or what is the uniqueness of any circle or cycle? That it ends exactly where it has started, isn't it? So menstrual cycle, as I already mentioned before also, that it is a 28-day cycle. Okay, so it varies from female to female depending on genetic factors and various other factors. In some female it can be 30 to 32 days, or in some female it can be 25 to 26 days also. Okay, so basically in the book also if you see, it's 28 days प्लस माइनस 3-4 डेज, मतलब 3-4 दिन पहले भी हो सकता है, 3-4 दिन बाद भी हो सकता है. दैट इज द नॉर्मल साइकिल. But in many cases, many females, they suffer from various gynecological issues like PCOS, which is a very common issue and a very big issue nowadays, particularly in the teenager girls. तो उनमें ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वही 40 डेज का हो गया है या 42 डेज का हो गया है, तो उनके लिए वही नॉर्मल है. ओके, so it will depend, it will vary, because PCOS का जो main problem है, that is irregular periods or irregular menstrual cycle. Okay, if I get time at the end of this session, then I will brief you about what is actually PCOS. Okay, so anyways, तो normal अगर cycle देखा जाए तो वो 28 days का होता है. ठीक है, उसमें जो again something I have already told earlier कि जो first 14 days है वो ovulation के लिए होता है, और next 14 days menstruation होगा कि नहीं वो मतलब वो तय किया जाता है. ठीक है, सो इफ वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, सो यहाँ पे जो ब्लीडिंग वाला फेज है वो सबसे पहले दिखा है, मतलब जब उसको मेंस्ट्रुएशन होगा, व्हेन द गर्ल विल ब्लीड. ओके, जिसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं आम भाषा में. ओके, सो द ब्लीडिंग पीरियड इज यूजुअली it continues for 3 to 4 days. That is absolutely normal bleeding period, 3 to 4 days, और मैक्स टू मैक्स 5 डेज. किसी किसी में ये भी वैरी करता है, किसी किसी में 1-2 दिन में ही खत्म हो जाता है ब्लीडिंग, किसी किसी में इट कंटिन्यूज अप टू 7 to 8 डेज. ओके, सो इसका भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आइडियल अगर हम मानेंगे तो 4 to 5 डेज इज द आइडियल टाइम फॉर द मेंस्ट्रुएशन टू कंटिन्यू. Okay, and the fertile time will be just before ovulation, which is which is between the 11th to 15th day of the cycle. मतलब just when your body is absolutely ready for ovulation. Okay, that is the exact period, or that is the perfect period for fertilization. Okay, or not for fertilization as in perfect period to conceive. Okay, so इसलिए जिन couples को particularly nowadays there are various problems regarding conceiving. कंसीव करने को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, द कपल्स आर continuously trying to conceive, but they are failing every now and then. So they go to the gynecologist, and the main suggestion और main जो सलाह gynecologist देते हैं वो ये है कि whenever you are trying for a baby, whenever you are doing family planning, you should aim practicing intercourse during your fertile time. Okay, which is just before ovulation. Okay, so one can easily calculate, isn't it? If, say for example, if the menstruation of that lady who wants to conceive but is having some problem, if the menstruation of the lady, say for example, has ended on the 10th of a month, then after around 12 days, okay, 10 plus 12 means around 22nd of the month, she will be at her peakest fertile time. Okay, so if during that time she practices intercourse with her male partner, then it might happen that she will be able to conceive if some other problem is not there. Okay, other problem as in वो female में भी हो सकता है, मतलब female partner में भी हो सकता है, male partner में भी हो सकता है. Okay, so it is also known as the ovarian cycle. Menstrual cycle का जो दूसरा नाम है, it is ovarian cycle, or it's also known as the female reproductive cycle. Okay, so let's move on.
सो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को छोड़ के और किस किस में होता है, मंकीज में होता है एंड एप्स में होता है, और उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनफैक्ट पीरियड्स का जो फेनोमेना है, यानी कि ब्लीडिंग का जो फेनोमेना है, वो बाकी एनिमल्स में भी देखा जाता है जैसे डॉग्स एंड कैट्स, लेकिन उसको हम स्ट्रस साइकिल बोलते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो हर महीने नहीं होता है। ठीक है, हर महीने जो होता है वो ह्यूमंस को छोड़ के सिर्फ मंकीज और एप्स में होता है। ओके, the term menstrual cycle is applied to cyclic changes that occur in the endometrium every month. Okay, तो menstruation का दूसरा और एक नाम है, that is menses या mensem. Okay, तो the meaning of that word is month. So it has to occur each and every month. So from there, from that word mensem, which means month, the term menstruation has come. Okay, तो इसमें क्या हो रहा है, endometrium. Now see, this is the most important word that you need to know about when we are starting about menstrual cycle. What is endometrium? Something I have already told and discussed with you when I talked about details of the structure of uterus, isn't it, in one of the previous sessions of this unit. तो वहां पे हमने क्या देखा था कि यूटरस का 3 लेयर होता है, isn't it? एक होता है पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर होता है, बीच वाला जो लेयर होता है वो होता है मायोमेट्रियम, ओके, जिसमें मसल्स बहुत सारे रहते हैं जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी। और जो तीसरा लेयर होता है वो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, इनर मोस्ट, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम का काम है अपने आप को रेडी करना इफ द लेडी कंसीव्स। ओके, तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जुड़ के क्या होता है, एंडोमेट्रियम का बहुत सारे चेंजेस होता है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे क्या, कभी वो थीन रहता है, कभी वो थिक हो जाता है। ठीक है, सबसे थीनेस्ट कब रहेगा, राइट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि ब्लीडिंग हो चुका है। तो जितना भी जितना भी एंडोमेट्रियम का लेयर्स बना था वो सारे के सारे बाहर निकल गया है थ्रू द ब्लड। सो राइट आफ्टर द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन द एंडोमेट्रियम विल बी द थिनेस्ट, सबसे पतला होगा, और सबसे मोटा कब होगा, राइट आफ्टर ओव्यूलेशन, और रादर राइट बिफोर मेंस्ट्रुएशन। मतलब ओव्यूलेशन के बाद से द एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट टू गेट थिकन्ड, बिकॉज ओव्यूलेशन हो गया है, सो देयर आर हाई चांसेस दैट देयर विल बी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद इफ द एंडोमेट्रियम इज नॉट रेडी टू टेक द बेबी, देन ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन व्हाट, इट विल रिजल्ट इन मिसकैरेज, इजंट इट, बच्चा जो है वो मर जाएगा। तो इसलिए राइट आफ्टर ओव्यूलेशन द एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट टू थिकन इटसेल्फ, एंड राइट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, राइट बिफोर द ब्लीडिंग पीरियड और द ब्लीडिंग टाइम, it will be the thickest. Okay, in human females menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. This is something I have already talked about, means basically ek mahina, 30 days approx. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. So menarche is again a very important term that you need to remember. Okay, menarche is when a lady or a girl rather, puberty में तो obviously lady नहीं बुला सकते हैं, a girl about to become a lady obviously because उसका menstruation start हो गया है. So the first time a girl gets her periods, gets her menstruation, will be known as menarche. Okay, and nowadays I think this is again something I've mentioned earlier also, that nowadays due to sedentary lifestyle, due to high stress, okay, due to food habits, mainly due to food habits and sedentary lifestyle, means कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता था बचपन में। हम लोग के बचपन में जैसे हम लोग बहुत खेलते कूदते थे, बाहर जाके खेलते कूदते थे। अभी के जमाने में खेलना मीन्स वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, इजंट इट। घर बैठो, एसी ऑन करो, बेड पे लेटे रहो और फोन में जो भी करना है करो, isn't it? So this is basically sedentary lifestyle, that there is no physical activity, no physical movement, minimum physical movement. बस बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए जितना मूवमेंट चाहिए, खाना भी आधे लोग बेड पे ही खा रहे हैं आजकल, isn't it? तो उसके लिए जितना मिनिमम मूवमेंट चाहिए वो हो रहा है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत है, स्पेशली अ चाइल्ड हु इज डेवलपिंग, वेदर इट्स अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। ओके, मेनली फीमेल चाइल्ड के लिए वो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि द फीमेल बॉडी इट नीड्स टू प्रिपेयर हरसेल्फ टू बिकम मैच्योर, isn't it? मतलब the females, they are actually gifted because they are the only species who can only species means only type of human species rather, who can give birth to a new life, isn't it? So that is an incredible capability, incredible ability.
सो उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ऑब्वियसली शी नीड्स समथिंग, शी नीड्स सम एक्स्ट्रा थिंग, isn't it, in order to prepare herself fully, prepare herself optimally to give birth to a new child, isn't it? तो इसके लिए लड़की लोग के लिए और भी ज्यादा जरूरत है कि वो ठीक से खाना पीना करे, अनहेल्दी फूड ना खाए और फिजिकल एक्सरसाइज करे, ठीक है। पर्टिकुलरली जब उसका प्यूबर्टी होने वाला है या फिर बिफोर प्यूबर्टी, ऑब्वियसली आफ्टर प्यूबर्टी ऑल्सो इट्स रिक्वायर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट, बट जब when that girl is developing physically and mentally during that period, it is much more important. Okay, तो आजकल के जमाने में why I am telling all this, because in recent times of in many surveys, in many scientific studies, it has been seen and it has been found, it has been actually concluded that girls are having their periods, their menarche, first periods, at an age as early as 8 years old. Can you imagine? So the normal age, जो अभी भी तुम लोग बुक में देखोगे तो normal age लिखा हुआ होता है 12 to 14 years for girls puberty का, और for boys it's 15 to 16. So जो 12 साल में होना है वो हो रहा है 8 साल में, 8 साल की उम्र में, 4 years before. Okay, so this is something which is unexpected, this is something which should not occur, because there are many complications, many later life complications, many side effects that are associated with early puberty, early puberty also and early menopause also, and there are high chances कि जिसका भी early puberty होगा उसका chances रहेगा कि उसका early menopause भी हो जाएगा. Okay, and both of them are actually not bad, sorry, not good. अर्ली प्यूबर्टी भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, अर्ली मेनोपॉज भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन अभी के जमाने में ये हो रहा है, ठीक है। 8-9 साल के उम्र से ही बच्चे लोग को पीरियड स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो दिस इज समथिंग which is not very good, it is unfortunate rather. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. Why middle? Because I have already said 14th day of the menstrual cycle is the day for ovulation. So 28 डे का अगर साइकिल होगा तो ऑब्वियसली उसका बीच में, मिडिल में मतलब एग्जैक्टली 14 डे होगा, और तभी हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है. द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर क्या क्या? नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब जिसमें ब्लीडिंग होगा. नंबर 2 विल बी फॉलिक्यूलर फेज, मतलब जिसमें जो फॉलिकल्स है वो डेवलप करेगा, ओवरियन फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. ओके, और नंबर 3 होगा ओव्यूलेटरी फेज, एंड नंबर 4 होगा लूटियल फेज. ओके, लूटियल फेज में क्या होता है? लूटियल फेज इज द फेज जो स्टार्ट होगा एग्जैक्टली आफ्टर द ओव्यूलेटरी फेज, मतलब जैसे ही तुम्हारा ओव्यूलेशन हो गया, यूटेरस के पास सिग्नल चला गया है कि अभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो तुम्हारे पास जाइगोट आएगा और तुमको उसको बड़ा करना हो. तो मतलब देन एंड देयर व्हाट विल बिगिन? द यूटेरस विल स्टार्ट, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस विल स्टार्ट टू थिकन. तो ये जो फेज है इसको हम बोलते हैं लूटियल फेज, जो स्टार्ट होगा राइट आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम द 15th डे. ओके, सो एक एक करके फेज देखते हैं. तो जो फर्स्ट फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज. ओके, so the cycle starts with the menstrual phase, which is also known as the menstruation or menses, when the menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow मतलब blood. Okay, blood के साथ साथ other waste products, debris, tissue debris, ये सब भी निकलता है. It's nothing but part of the endometrium of the uterus. Okay, जिसमें majority होता है blood, so that's why we say it's blood. Okay, and it will continue for 3 to 5 days. So the menstrual flow will result due to the breakdown of the endometrium lining of the uterus and its blood vessels, which form a fluid that comes out through the vagina. Okay, so जितने भी endometrium lining का contents था, उसके साथ साथ उसका जो blood vessels था, because uterus we all know it's a highly vascular organ, तो उसमें जो भी thickening होगा लेयर का, उसमें भी blood supply भरे पड़े होंगे, isn't it? The main constituent blood होगा, and that will form a fluid or a liquid which will be coming out through the vagina. Menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized. Now this is something very important, and a very important concept rather, which you need to develop very straight. कि menstruation हो रहा है मतलब bleeding हो रहा है मतलब the ovum was not fertilized.
ओके, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। ऐसा इट्स नॉट कंपल्सरी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से ही द गर्ल विल बिकम प्रेग्नेंट, नो, देयर इज नो थंब रूल फॉर दैट, isn't it? There are many other associated factors for that. So successful sexual intercourse hona hai. Successful means leading to pregnancy, leading to fertilization. That is what is meant by successful sexual intercourse. Okay. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. See over here, this maybe word is very important. It doesn't necessarily mean that menstruation nahi ho raha hai matlab that girl is pregnant. No. Again, there is no thumb rule. Okay, हो ही सकता है कि there is some other problem. उसको पीसीओएस हो गया है, उसके ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है. ओके, बस ऐसे भी हो सकता है कि इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी कि एक महीना उसको पीरियड्स नहीं हुआ है, फिर नेक्स्ट महीने होगा, ऐसा भी हो सकता है, होता भी है. ठीक है. सो अगेन इट्स नो थंब रूल दैट मेंस्ट्रुएशन मिस हुआ है मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है मतलब वो पक्का दैट गर्ल इज प्रेग्नेंट, नो. बट ऑब्वियसली देयर आर चांसेस, obviously there are chances, okay, particularly if that lady or if that woman is sexually active. Okay, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress and poor health. Exactly what I mentioned, stress की वजह से हो सकता है, anxiety की वजह से हो सकता है, depression की वजह से हो सकता है, कभी कभी बहुत सारे medicines का side effect होता है, especially जिन लोग thyroid medicines लेते हैं, antidepressants लेते हैं, these are some medicines which are having side effects on your menstrual health. तो उसके वजह से भी हो सकता है. ओके, सो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया. नेक्स्ट जो फेज आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट विल बी द फॉलिक्यूलर फेज. तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट द प्राइमरी फॉलिकल विल ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग दिस फेज. प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, मैच्योर करता जाएगा और फाइनली वो बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल जिसमें थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना ये सब होगा. ओके, सो ये फॉलिक्यूलर फेज जो होगा वो चलेगा right from the it will start right from the end of the menstrual phase and it will continue right from the beginning of the right till the beginning of the ovarian phase. मतलब कि 5th डे से वो स्टार्ट होगा और 13th डे तक वो चलेगा. ओके, तो ये वाला पार्ट इस डायग्राम में सी, राइट फ्रॉम द प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू द ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा जो स्टेजेस है ये सारा स्टेज कवर होगा in the follicular phase from the 5th to the 13th day of the cycle. Simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. और इसके साथ साथ ही क्या होगा, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली क्या होगा, यूटरस का जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है मतलब एंडोमेट्रियम है ही नहीं, समझ लो, मतलब बहुत ही पतला एक थीन सा लेयर है, क्योंकि जितना भी वो बना था वो सारा शेड हो चुका है थ्रू द ब्लड. सो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है और फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो रहा है वैसे ही एंडोमेट्रियम धीरे धीरे अपने आप को फिर से दोबारा रीजनरेट कर रहा है. ओके, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. तो जब भी ये फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होगा धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा. और ये कैसे होगा, इट विल बी इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स. पिट्यूटरी हार्मोन्स में क्या आएगा, वही एलएच एंड एफएसएच जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था. ओके, the secretion of gonadotrophins LH and FSH increases towards the end of the follicular phase. तो जैसे ये follicular phase खत्म होने वाला होगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल तक जैसे ही बन चुका होगा वैसे ही धीरे धीरे ये LH और FSH का लेवल बढ़ता जाएगा जो कि रिलीज होगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एज गोनाडोट्रोफिन्स. ओके, क्या होगा एज अ रिजल्ट, gonadotrophins in turn will stimulate the follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. तो जैसे मैं पहले भी बोली हूँ कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा रिलीज होता है फ्रॉम द फॉलिकल्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्रोइंग फॉलिकल्स जो कि हमारा सेकेंडरी फॉलिकल सॉरी है राइट, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, इससे रिलीज होगा एस्ट्रोजन. when these follicles will be stimulated by the LH and FSH secreted by the pituitary gland. Okay, खत्म हो गया फॉलिक्यूलर फेज. अभी जो नेक्स्ट फेज है, लास्ट फेज है, सॉरी थर्ड सेकेंड लास्ट फेज है,
थर्ड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज. सो नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ही ओव्यूलेशन होगा उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज. ओके, कब होगा? जब एलएच एंड एफएसएच दोनों होंगे पीक में. Okay, so there's a particular term that is used to define ovulation, that is LH surge. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस दिन LH सर्ज होगा, सर्ज मतलब क्या? अचानक से बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाना, दैट इज सर्ज. तो जिस दिन LH सर्ज होगा, मतलब जिस दिन अचानक से LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नॉट ओनली LH बट ऑल्सो FSH, उस दिन मेरा ओव्यूलेशन होगा साइकिल. ओके, सो इट विल बी ऑब्वियसली ऑन द मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज द 14th डे. सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही दिखा है, LH surge. LH surge is very important for ovulation to occur, and it's also very important for MCQs. Okay, so remember it. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle is called the LH surge. So basically LH surge and ovulation, they go hand in hand. Ovulation होने से LH surge होगा, LH surge होने से ovulation होगा. Okay, it induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of the ovum, that is the secondary oocyte. Okay, or the rather the matured secondary oocyte. Okay, so जैसे ही हमारा LH सर्च होगा वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल जो है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एनलार्ज हो चुका है और एकदम ओवरी का वॉल तक आ गया है, उसको बल्ज आउट कर दिया है, जो यहाँ पे दिख रहा है. दीज आर थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स इन द प्रीवियस सेशन. तो वो क्या करेगा? ओवरियन वॉल को रप्चर कर देगा और जो ओवम है वो अंदर से निकल जाएगा बाहर. ओके, सो हो गया लूटियल फेज, हो गया ओव्यूलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज भी हो गया. अभी बचा है लास्ट जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज द लूटियल फेज. तो वो कब तक होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम द 15th डे टू द 28th डे, मतलब राइट आफ्टर ओव्यूलेशन till the beginning of the menstrual phase. Okay, during luteal phase the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. तो Graafian follicle का जो बचा कुचा सामान होगा, मेन सामान तो निकल ही गया है ओवम, तो बाकी का जो सामान होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा? फिर से वो अपने आप को प्रोलिफरेट करेगा, बड़ा होगा और एक येलो कलर्ड का ग्लैंड्यूलर मस बनाएगा जिसको हम कॉर्पस लूटियम बोलेंगे. ओके, तो कॉर्पस लूटियम का ये जो लूटियम टर्म है वहां से आ रहा है लूटियल फेज टर्म, ऐसे याद रखना. ठीक है, कॉर्पस लूटियम से लूटियल फेज. द कॉर्पस लूटियम विल सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, इजंट इट? क्योंकि तभी तक भी कॉर्पस लूटियम को पता नहीं है कि वेदर फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उसको पता है कि अभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, Isn't it? क्योंकि मेरा ओवम निकल चुका है, वो किसी भी मोमेंट पे स्पर्म के साथ टकरा सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो एज अ रिजल्ट वो सोच के कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा एंड इट विल कंटिन्यू इट फॉर 14 days. इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, 14 दिन तक वो सिक्रेट करेगा, फिर बंद कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा टू कॉर्पस अल्बिकेंस. और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तब 14 दिन के बदले वो 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता जाएगा, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता जाएगा एंड इन टर्न इट विल बी मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. ओके, तो कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, इसका मेन पर्पस यही है कि यूटेरस का एंडोमेट्रियम मेंटेन हो. ठीक है, वो शेड करना स्टार्ट ना करे. ओके, सो लूटियल फेज में बेसिकली क्या हो रहा है कि LH भी ज्यादा है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ज्यादा है. Such an endometrium is necessary for implantation of the blastocyst stage and other events of pregnancy. Okay, so fertilization के बाद जो बनता है वो है zygote. उसके बाद धीरे धीरे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसमें जो वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो फॉर्म होता है गैस्ट्रुलेशन का, वो है ब्लास्टोसिस्ट. और ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ही जाके यूटेरस में इम्प्लांट होता है और इसके लिए एंडोमेट्रियम का थिक रहना बहुत ही जरूरी है. So that is basically the purpose served by the luteal phase. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. Okay, क्यों? Why will menstruation stop? क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो तो रहेगा ना, वो 4 महीने तक रुकेगा और वो प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूसली फॉर्म करता रहेगा. Isn't it? प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक में रहेगा और इस्ट्रोजन का लेवल एकदम लो हो जाएगा. तो अगर इस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, और ओव्यूलेशन अगर नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन का कोई चांसेस ही नहीं है.
isn't it? So throughout the entire period of pregnancy, that is the gestation period of 9 months in case of humans, there will be no bleeding, no menstruation. Menstrual cycle जो है वो पूरा बंद हो जाएगा. Okay. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है वो 14 दिन बाद डिग्रेड कर जाएगा, करके कॉर्पस एल्बिकैंस बनाएगा जो कि एक व्हाइटिश बॉडी होगा, और साथ साथ एंडोमेट्रियम जो है वो भी डिजेनरेट कर जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, क्योंकि देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन, उसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, तो वो डिजेनरेट करके निकल आएगा थ्रू मेंस्ट्रुएशन, थ्रू द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age and it is referred to as menopause, which is the natural cessation of menstrual cycle. Cessation मतलब बंद हो जाना. Okay, तो menopause हम कब बोलेंगे, जब menstrual cycle permanently बंद हो जाएगा. Temporary बंद कब होगा, जब that lady will be pregnant. लेकिन right after delivery, not right after delivery, it takes around 3 to 4 months for the normal menstrual cycle to begin again after delivery. और परमानेंट स्टॉपेज कब होगा, परमानेंट बंद कब होगा, एट अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स, जो कि फिर से अगेन इन नाउअडेज इन रिसेंट टाइम्स इट सीन कि बहुत अर्ली मेनोपॉज हो रहा है. ठीक है, और उसका रीजन भी सेम है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज, टोटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, तो ये सब के वजह से अर्ली मेनोपॉज हो रहा है. ओके, एट अराउंड 38-40 इयर्स ऑफ एज में मेनोपॉज आ रहा है. Okay, so that is again something bad, not expected, and it is again something that has many side effects. Okay, like जो सबसे most common side effect जो होता है early menopause का, वो होता है osteoporosis and osteoarthritis, क्योंकि bone density जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. Okay. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause. मतलब menarche होने के बाद से menopause होने से पहले तक जो मतलब साइकिल चलेगा, menstrual cycle, during that phase the female will be reproductively active, मतलब she will be able to conceive. Okay, but बोला जाता है the maximum age to conceive is before 35. 35 के बाद कंसीव नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं. अगेन नाउअडेज लेट प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि द फीमेल्स हैव बिकम मोर एडवांस, दे हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो दे फोकस ऑन देयर करियर मच मोर rather than having baby and having a family. So that's the reason why they're planning late pregnancy, and again that's the reason why there are much more complications. Okay, birth defects ज़्यादा बढ़ गए हैं, genetic defects बच्चों में ज़्यादा बढ़ गया है, Asperger's, autism, Down syndrome, ये सब बहुत ज़्यादा common हो गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ladies आजकल they are becoming late mothers, aged mothers. Okay, so that is why it's recommended by the doctors also that you should have your first baby before the age of 35. Okay, 28 to 30 is actually the perfect age. Okay, so this is basically a diagrammatic representation of the menstrual cycle. Okay, so नीचे जो दिख रहा है that is the endometrium, thickness of the endometrium. So सबसे ज़्यादा रहेगा during the late phase of the menstrual cycle, means during the luteal phase, isn't it? Okay, और इस्ट्रोजन का लेवल जो होगा, और सॉरी एंडोमेट्रियम का थिकनेस सबसे कम कब होगा, ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, मतलब जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है. और अगर हार्मोन्स का लेवल देखेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल, रादर फीमेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल, तो सबसे ज्यादा रहेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल, सबसे ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग द लूटियल फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा ठीक है तो उसको मेंटेन करना है, दैट इज द मेन जॉब ऑफ प्रोजेस्टेरोन. और इस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन होने वाला है और उसके लिए इस्ट्रोजन का सीक्रेट होना बहुत ही जरूरी है. और अगर एलएच और एफएसएच का देखा जाए तो उसका लेवल भी सबसे ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, और पर्टिकुलरली एलएच का लेवल सबसे ज्यादा बढ़ेगा ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, जिसको हम एलएच सर्ज बोलेंगे, जो कि आइडियली 14th डे में होना चाहिए. ओके, the first menstruation begins at puberty and is called menarche. This is something I have already mentioned. और permanent stoppage or cessation of menstrual cycle is called menopause. तो menarche और menopause के बीच वाला जो phase होगा, that will be the reproductive period of female. Okay, now ending it with some important MCQ. So the first MCQ that we can see over here, the first menstruation is known as, obviously the right answer will be menarche, very easy. Second MCQ, during mid-cycle, the rapid secretion of LH results in, again very easy, the right option will be ovulation. LH surge matlab ovulation. Okay.
So I think that's it. Soon we will be moving on to the next unit, or the next session of zoology for Neet. Okay, so till then, thank you and stay tuned.